movie is very great. I think everybody should just watch it for the love of their nation. Overall, the acting was amazing. It was beautiful. Totally loved the movie. Shouts like I'm not a bloody terrorist. He shouts like that, goosebumps आते हैं एकदम. It was a learning experience and it has come out as good as the book. रेटिंग तो 5 में से 5 पर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है। देखो, ये जो मूवी मैच फिक्सिंग है, ये मेरी बुक के ऊपर बनी है। मैंने वो बुक लिखी है, द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर, और ये मैंने मूवी देखी है। दिल्ली में भी देखी थी जब हमने शो करा था फौजी भाइयों के लिए, और यहाँ पे भी देखी है। बहुत अच्छी मूवी बनी है और सारे देशवासियों के लिए, सारे फौजी भाइयों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। ये मूवी बहुत अच्छी चलेगी और इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये मूवी कंट्रोवर्शियल नहीं है कहीं से भी। आप मूवी देखिए तो आपका पता चलेगा। ये किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी समाज के लिए गलत नहीं बोलती है। ये मूवी है इसके लिए कि पाकिस्तान ने कैसे हिंदुस्तान के ऊपर एक से एक बाद में रेगुलर तौर से टेरर अटैक करे थे, और फिर कैसे उन टेरर अटैक से देश ने निपटा है। ये एक देशभक्ति की मूवी है, ये कंट्रोवर्शियल कहीं से भी नहीं है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में कहा भी था, क्योंकि जिसने रिट पेटिशन डाली थी उनको बताया था कि ये फिक्शनल अकाउंट है जो बुक के ऊपर है। तो मेरी समझ से इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप एक बार ये पिक्चर ज़रूर देखिए और फिर अपना जजमेंट बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, ये मूवी समाज को क्या संदेश देती है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये एक किस्म से मोटिवेशनल मूवी है जो देश के हर नागरिक को ये संदेश देती है कि हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब तक हमारी आखिरी सांस है, जब तक देश सेवा करनी चाहिए। देखिए, मैं इसको 5 में से 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैं इससे एसोसिएटेड रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखी है मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। It was a lovely movie, and you know, I have been involved right from the book stage. I edited the book, and thereafter I got a chance to work with these filmmakers. It was a learning experience, and it has come out as good as the book. Yeah, but why it should not be? Because you know, a lot of the facts are in the known area about Manmohan Singh, chief meeting him. Everything is in the real area. A lot of books have been written on this, including by R.V.S. Mani. So there's nothing which is out of. That's why nobody has gone to court. No politician has gone to court to stop the movie. Exactly. Actually, I was surprised. Now, once if somebody reads the book after having seen the movie, he can see that it is frame to frame written. So that way, hats off to the filmmakers who have made such a lovely. And you know, my message will be that they should learn to respect such movies and see such movies which are in the real frame, real time frame of the events what have happened in our history. I hope it faces, but you know, they will not, because they have feet of clay when such things come. They don't really like to take things head on. No, since I've been involved, I like to give it at least 4.5. Match fixing movies, first of all, it's brilliantly made. The topic on which this movie is based, it's a very, very sensitive topic. And we as common people, we are not aware of so many things which happen at the conspiracies which cook. I mean, it's mind-blowing. We are simply not aware what's going on. And we just see the end results that, okay, there is some blast here and there is some terror attack here. But how it has all been orchestrated, who are the people behind it, you just cannot fathom. You know, there is such a big conspiracy that goes on into this. All the characters, they have played a brilliant role. It's a movie I think every Indian should watch. You know, people should get their families and watch it in the theaters, because this is something which is close to the hearts of every Indian. So I think it's a brilliantly made movie, and
when you leave the theater, it is basically you are completely silent. You are lost in your thoughts, and this movie makes you think. Should not be, because this movie is based on a book, okay, which is written by Colonel Katana. So I don't think that should happen. See, it is something which it is for people to understand, take it as a story, and it can happen anywhere. So we need to just take it as a story and leave it there. I would suggest that every person should come and watch with their families, friends, together in the theater, and see and watch this movie, because it will make you think to a different level. Every patriotic Indian should watch this movie, I believe. Absolutely fantastic. Vineet, Anuja, everybody, I mean Manoj sir, I mean everybody has done a brilliant job. I mean 138 characters in the movie, can you believe? So it's amazing the way it has been orchestrated. 4.5. This movie is very great. I think everybody should just watch it for the love of their nation. But I feel that this movie has handled it very sensitively with a lot of care. And people are free to make their own opinion at the end of the day. So it's the audience's job to then make their own view and see how they respond with the truth that is being shown. Vineet Singh has done a fabulous job. In fact, he is portraying so many roles undercover also. Without giving too much away, he's also an army man. He is undercover, working as so many different roles, and he has portrayed them beautifully. And Anuja Sathe also, she has portrayed the army wife, such a strong character, even though she's there for a very limited time frame, but she's done a fab job. एक तो मूवी बहुत अच्छी है. जब एंड होता है तो वो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, और एंड भी ऐसा है कि आपको वो सोचने पे मजबूर करता है. बहुत सारे पॉलिटिकल जो इंसिडेंसेस लिए हैं इसमें, जैसे 26/11 का है, जैसे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का है. तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं इंटरव्यू में देखा था प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलते हुए कि अगर जो लीड हीरो है या इसके ट्रू बेस्ड पे ये स्टोरी है, अगर ये नहीं होता तो 26/11 भी शायद अवॉइड कर सकते थे. तो वो बहुत सोचने वाली बात लगी मुझे. तो मुझे लगता है कि एक तो जो किरदार जिस सभी ने निभाया है, तो उसको नाम तो अलग दिए हैं, वो हमें गेस करना पड़ता है, और इजीली हम गेस कर सकते हैं कि ये किरदार ये है, ये किरदार ये है. तो थोड़ा ये फिक्शन बेस्ड भी लगा मुझे, पर मुझे नहीं लगता इतना भी तनावपूर्ण वातावरण इसके बाद हो सकता है. अभी गवर्नमेंट भी अपनी बीजेपी की है, तो मुझे लगता है एक्चुअली उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं. और मुझे लगता है सब ने, फैमिली ने मिल के ये फिल्म देखनी चाहिए. तो शायद अभी इसके उम्र के जो लोग हैं उनको वो इंसिडेंसेस पता भी नहीं होंगे, उसका एटलीस्ट उन्हें अंदाज़ा आ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है. I really felt that he's living the character through his acting, and I also realized the importance of Indian Army for our country, and especially for my generation, this movie was extremely informative. Because we don't really have that much information on all these topics like Malegaon bomb blast. But after watching the movie, we were really inspired, and we felt that feeling of nationalism that our And I think armies- patriotism. Yes, patriotism. And overall, the acting was amazing. It was beautiful. Totally loved the movie. Salute army, those people and their families are absolutely what they do, and क्या sacrifices करते हैं ना, उसका एक झलक दिखी ना, तो भी मुझे लगता है सिर्फ उठ के मुझे सैल्यूट करने वाली बात मिलती है. I think 4.5, definitely. 4. Amazing. I'm 4.5 also I'm good. मैच फिक्सिंग अगर मैं ऑनेस्टली रिव्यू दूँ ना, तो सिंपली बहुत बहुत अच्छी लगी है. एंड स्पेशली मैच फिक्सिंग की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि जो उसमें कैरेक्टर्स हैं ना, वो इतनी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और एक एक कैरेक्टर, उसकी स्टोरी जो है इतनी ऑनेस्टी के साथ दिखाई गई ना, जो एक्चुअली हुआ था. मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि हुआ नहीं हुआ, बट वो देख के ऐसा लग रहा है सही में ऐसा हुआ है क्या, बिकॉज आई डोंट नो दैट्स ट्रूथ और नॉट. बट बहुत एंड स्पेशली द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, आई लव्ड हिम एज एन एक्टर, परफॉर्मर. आई लव्ड हिम. मुझे विनीत सिंह एज एन एक्टर बहुत अच्छे लगे. मतलब
वो जो परफॉर्म कर रहे थे ना, मैं उस जोन में जा रही थी कि हाउ ही इज़ फीलिंग एंड एवरीथिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई थॉट कि मतलब जिसको ये सही नहीं लग रहा है या जो अपनी खुंदक निकालना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी वो इसको गलत कह सकते हैं, बट इसमें कुछ गलत कहने वाली बात ही नहीं है। आई मीन वो एक मूवी है, हम उसको एज अ एक परफॉर्मेंस की तरह देख सकते हैं, एक कि क्या हुआ है, मतलब हम जस्ट इन्जॉय कि भाई एक्टर्स ने एक्चुअली और डायरेक्टर ने सबने इतनी मेहनत की है इसमें, तो हम उसको मतलब एक परफॉर्मेंस की तरह देख सकते हैं। प्रोपेगेंडा मुझे लगता नहीं है कि लेना चाहिए। सो आई थिंक लोगों को जाना चाहिए ये मूवी के लिए, क्योंकि ये मूवी में आपको प्रोपेगेंडा वो सब आप पीछे छोड़ दो, आप सिर्फ एक एक्टर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट आपको क्या बताना चाहता है, उसके लिए आपको जाना चाहिए। प्रोपेगेंडा तो ठीक है यार, कभी कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, बट मेन इज़ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। First of all, it's a privilege to be a part of such a humongous film and such a huge crew, so many talented people together, and being the music director of the film, as well as writer, singer, have done a lot of things in this film. But एक तो देशभक्ति जो कूट कूट के भरी पड़ी हुई है इस फिल्म में, और जो एनर्जी है, जो केदार हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, सब ने मिलके जो एनर्जी भरी है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स। सी, आई थिंक इट विल गो थ्रू वॉट एवर चैलेंजेस इट कैन, बट अल्टीमेटली आर्ट का जो फॉर्म है, मूवी, सिनेमा, म्यूज़िक, एक्टिंग, ये जो आर्ट फॉर्म है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अच्छा आर्ट जो है वो आगे आएगा ही, वो बाहर आएगा ही, वो अप्रिशिएट होगा ही, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करे क्यों ना करे। और ऐसे तो मतलब ऑल द एक्टर्स आर अमेजिंग। आई प्रोबेबली मोर टूवर्ड्स विनीत द लीड। When he shouts like I'm not a bloody terrorist, when he shouts like that, goosebumps आते एकदम। So he's amazing। See, बहुत टाइम से अभी हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अच्छा पेट्रियोटिक गाना नहीं आया था, एक फाड़ू पेट्रियोटिक गाना नहीं आया था, विच आई बिलीव एक सिपाही द सॉन्ग, इट रियली गिव्स दैट काइंड ऑफ बूस्ट एंड पम्प टू द एंटायर स्टोरी एंड देयर एक्टिंग एंड द कैरेक्टर that Vineet is playing. So music is actually a very beautiful part of, and the background score as well. The person who has done that's Rishi Girdhar, and he has done a fantabulous job for background score, and I have done also a fantabulous job. First of all, I like to congratulate the producer. The reason behind congratulating producer because ये सब्जेक्ट ऐसा है कि पहले तो प्रोड्यूसर की डेयरिंग होनी चाहिए कि इस तरह का सब्जेक्ट बनाए कि, और यहाँ पे पिक्चर देखने के बाद सच्चाई हमें बहुत सारी पता चलती है जो आज तक बहुत बड़ा छुपा के रखी थी, ऐसा मैं बोलूँगा। तो ये सच्चाई उजारने वाली फिल्म है। डेफिनेटली द डायरेक्टर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, बट मुझे अच्छा ये लगा कि ज़्यादातर मैं प्रोड्यूसर को इतना कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका था कि इस तरह के पिक्चर मार्केट में आनी चाहिए, ये बहुत कुछ हमें दिखा के जाती है, सिखा के जाती है। एंड आई थिंक यहाँ पे सब मुझे कहीं पे मुझे कुछ फिल्मी ऐसा लगा नहीं। आई फाउंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली एंड वेरी इट वाज रियलिस्टिक थैंक्स टू द आई थिंक द पर्सन द गाय और जिनके नोट आई मीन नावल के ऊपर उन्होंने पिक्चर बनाई है, मिस्टर खटाना साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको भी कांग्रेस करना सकता हूँ कि उन्होंने मतलब जो बातें बाहर आनी चाहिए वो आज हमको पर्दे पे दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर बुक्स पढ़े हुए थे, हमने बहुत सारे बुक्स टेररिज्म के ऊपर पढ़े थे, मगर इस पर्टिकुलर जो टेररिज्म के ऊपर जो पिक्चर बन रही है वो बहुत ज़्यादातर रियलिस्टिक लगती है, उस पर हमें बड़ा अच्छा लगता है। देखो यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन ए पॉलिटिकल, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और ये फिल्म ये सच्चाई बाहर ला रही है और सच्चाई को कहीं तो भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर मुझे एक्टिंग कर रहे ऐसा लग ही नहीं रहा था। इट वॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथली एंड इट वॉज एब्सोल्युटली गोइंग आउट वॉज वेरी स्मूथली, स्पेशली द लीड विनीत कुमार और बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर थे, या कहीं पे भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि दे वर डूइंग एनी एक्टिंग। दैट्स व्हाई सेइंग आई इज टर्निंग टुवर्ड्स मोर ऑन द रियलिस्टिक साइड। आई थिंक आउट ऑफ 5 आई विल डेफिनेटली गिव 3.5 to 4। ये मूवी बहुत अच्छी है और जो आजकल जो चल रहा है, अपन जो देख रहे हैं राजकारणी लोगों का, और जिस हिसाब से वो बोलते हैं और प्रैक्टिकल में यहाँ अपन देख रहे हैं, तो किस ढंग से भारत को
एक अलग तरीके से लेके जाते हैं क्या वो ये है। और पाकिस्तानी लोग जिस हिसाब से है कि वो कभी भी इंडिया के साथ में नहीं रहेंगे, वो कभी भी इंडिया के ऊपर घाती करते हैं। और उनका जो सोचना है वो दिखाने का एक है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो इंडिया के खिलाफ है और वो पाकिस्तानी इंडिया में पाकिस्तानी दूसरा बनाना चाहते हैं। ये सब दिख रहा है। तो इस हिसाब से ये अपने हिंदू लोगों को या इंडियन लोगों को ज़रूरी है कि अपन एक साथ रहना है, क्योंकि ये जो अपन फिल्म देखते हैं और ये जो प्रैक्टिकल हो रहा है तो ये बहुत बेकार है। अपने को यहाँ पे ज़रूर हिंदू लोगों को या इंडियन लोगों को, मैं हिंदू नहीं बोलूँगा लेकिन इंडियन लोगों को एक साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अपना मुल्क सही रह नहीं सकता है। ये एक फिल्म के अंदर से देखने के बाद लगा और ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये टॉप नंबर 1 की फिल्म बनेगी। एक्टिंग में तो जो पटवर्धन जो है उनकी एक्टिंग द बेस्ट है, उसको कोई तोड़ नहीं है, एकदम लाजवाब है। जरूर 100% माहौल अच्छा रहेगा। और कुछ लोग इसमें ये भी सोचते हैं क्या राजकारणी लोग इसमें कुछ बछड़ा खड़ा करे, लेकिन कुछ नहीं होगा। जब हिंदू लोगों को या इंडियन लोगों को पता चलेगा क्या ये सही है तो इससे कुछ नहीं होगा। कितना भी पॉलिटिक्स वालों ने कुछ भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेटिंग तो 5 में से 5 पर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है। No, not at all. No. It is rationalizing rather. The politics will take its own way, but people will love this movie. Really, it's very good acting. Very good. It's loving really. I'm enjoying. It's 5 out of 5. 5 out of 5. Sure. Movie is directed very good, and the main lead Vineet has done very good job. Entire team has done very good job. Directed very well. And the main thing is like the film is about Samjhauta Express incident and the entire match fixing things which has happened in India. So I would like to say that जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए, सो डैट और इंडियन पीपल और एंटायर कंट्री शुड नो अबाउट द रियल इंसिडेंट अबाउट आवर कंट्री, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। और पॉलिटिक्स के ऊपर है, दैट्स ऑल। ओह गॉड, दे आर अमेजिंग, दे आर सुपर्ब। आई मीन आई एम नोबडी टू से कमेंट ओवर देयर एक्टिंग्स, दे आर marvelous, I can say. Vineet is amazing. Okay, so 3.5 I would like to give.